تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ ہم آج ایک ایسے ملک کی سیر کرنے والے ہیں کہ جسے اس دنیا کی جنت کہا جاتا ہے۔ یہاں پہاڑوں، نہروں اور لہلاتی کھیت کھلیانوں سے لے کر جدید اور ترقی یافتہ اونچی اونچی عمارات موجود ہیں۔ یہ ہوا کی رفتار سے ترقی کرتا ہوا ایک ملک ہے۔ یہ دنیا کا ایک ایسا انوکھا ملک ہے کہ جس کا کوئی دارالحکومت ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں ہر شخص ہتھیار لے کر گھومتا ہے، لیکن پھر بھی یہ دنیا کا پرامن ترین ملک ہے۔ یہاں ایک ایسا قانون بھی موجود ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت حجاب یا پردہ کرتی دیکھی جائے تو اسے گرفتار کر کے $10,000 تک کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں دنیا کا ہر کرمنل اپنا کالا دھن چھپاتا ہے، یہاں تک کہ ایڈولف ہٹلر نے بھی ساری دنیا سے سونا لوٹ کر یہیں چھپایا تھا۔ یہاں کے باشندے انتہائی قوم پرست ہیں جو غیر ملکیوں سے امتیازی سلوک برتتے ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں پریوں کی طرح حسین ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ یہ آپ آگے چل کر جانیں گے۔ یہ قوم دنیا میں سب سے زیادہ ہم بستری کرتی ہے۔ یہاں سنڈے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر بس بچے بنانے میں مصروف رہیں۔ یہاں سڑکوں پر ایسی واہیات پریڈ کا انعقاد ہوتا ہے کہ جہاں مرد و خواتین انتہائی فحش لباس میں چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں اور منشیات کا بھی خوب استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی لذیذ ترین چاکلیٹ بنانے والے ملک سوئٹزرلینڈ کی۔ تاہم ویڈیو شروع کرنے سے قبل میری نئے آنے والے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بلا تاخیر ملتی رہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس تفریحی اور معلوماتی سفر کی۔ سوئٹزرلینڈ وسطی یورپ کا ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جس کا آفیشیل نیم سوئس کانفیڈریشن ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا کل رقبہ 41,285 مربع کلومیٹر ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی سرحدیں مغرب میں فرانس، شمال میں جرمنی، مشرق میں آسٹریا اور لیخٹنشٹائن، جبکہ جنوب کی جانب سے اٹلی سے ملتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی کل آبادی 87,38,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ چلیں اب کچھ بات کرتے ہیں یہاں کے مذہب کی۔ سوئٹزرلینڈ میں 62.6% لوگ دین مسیحیت سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں 34.4% کیتھولزم، 22.5% سوئس ریفارمڈ اور 5.7% دیگر مسیحی فرقے شامل ہیں۔ مذکورہ 62.6% کرسچنز کے علاوہ 29.4% ایتھسٹ، یعنی وہ لوگ جن کا کوئی مذہب نہیں، 5.4% مسلمان، 0.6% ہندو اور باقی 2% لوگ دیگر دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملک میں بولی جانے والی زبانیں جرمن، فرینچ، اٹالین اور رومانچ ہیں۔ یہ تمام زبانیں یہاں کی آفیشیل لینگویج تسلیم کی جاتی ہیں۔ یہ بات بھی بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہوگی کہ سوئٹزرلینڈ کا کوئی دارالحکومت نہیں، البتہ سوئٹزرلینڈ کی پارلیمنٹ برن نامی شہر میں موجود ہے، لہٰذا اسے یہاں کا ڈی فیکٹو دارالحکومت یا پھر فیڈرل سٹی کہا جاتا ہے۔ برن شہر کا کل رقبہ 51.6 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس شہر میں 1,33,000 لوگ رہتے ہیں۔ برن شہر 1191 میں آباد ہوا تھا۔ 16ویں صدی عیسوی کے دوران یہ شہر رومن کیتھولک اور اصلاح پسندوں کے درمیان تنازعات کا ایک گڑھ بنا رہا۔ 1798 میں اس شہر پر فرانسیسی فوجیوں نے قبضہ کر لیا۔ نیپولین کی قیادت میں فرانس کی انقلابی فوجوں نے سوئٹزرلینڈ کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سن 1848 عیسوی میں سوئٹزرلینڈ کی آزادی کے بعد یہاں سوئس پارلیمنٹ کی بنیاد رکھی گئی، جس کی وجہ سے اسے آج بھی سوئٹزرلینڈ کے فیڈرل سٹی کا درجہ حاصل ہے۔ شہر برن میں پورے سوئٹزرلینڈ کا سب سے بڑا چرچ بھی موجود ہے۔ گوتھک طرز تعمیر کے شاہکار اس چرچ کی تعمیر سن 1421 میں شروع ہوئی اور 1893 میں، یعنی ایک طویل ترین عرصے کے بعد یہ پایۂ تکمیل تک پہنچا۔ سینٹ ونسنٹ نامی اس چرچ کا مینار 330 فٹ بلند ہے۔ یہ اس شہر کا ایک تاریخی ورثہ ہے جو شہر برن کے آئیکن کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ چرچ کے مینار میں نصب گھڑی 15ویں صدی عیسوی کے دوران یہاں لگائی گئی تھی۔ یہ تاریخی چرچ اور اس کا مینار دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاح اس شہر میں آتے ہیں۔ شہر برن میں بیئر پارک نامی ایک جگہ بھی کافی مشہور ہے، جہاں بہت سے ریچھ بیک وقت تماشائیوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ برن شہر میں ہی سوئٹزرلینڈ کا سب سے پرانا میوزیم بھی موجود ہے۔
जो सन 1879 में कायम किया गया था और आज तक अवाम उन्नास की सैर व तफरी और मालूमात में इजाफे का बाइस बन रहा है। बर्न हिस्टोरिकल म्यूज़ियम स्विट्ज़रलैंड का दूसरा सबसे बड़ा अजायब खाना है। मज़कूरा म्यूज़ियम में मिस्र और कई तारीखी मकामात से मंगवाई गई नायाब चीज़ें मौजूद हैं। मशहूर ज़माना साइंसदान आइंस्टाइन भले ही जर्मनी में पैदा हुए थे, ताहम इन्होंने एक तवील अरसा स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्न में भी गुजारा है। स्विस हुकूमत ने इनके घर को एक म्यूज़ियम की शक्ल दे रखी है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन म्यूज़ियम कहलाता है। स्विट्ज़रलैंड में चलने वाली करेंसी को स्विस फ्रैंक कहते हैं। यहाँ का एक स्विस फ्रैंक पाकिस्तान के 304 रुपयों के बराबर, जबकि इंडिया के 95 रुपयों के बराबर है। स्विट्ज़रलैंड वक्त के एतबार से पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। वक्त के लिहाज से ये भले ही हमारे मुल्कों से पीछे हो, लेकिन बात अगर तरक्की की हो तो इसका शुमार दुनिया के सिफ़े अव्वल के ममालिक में होता है, जहाँ के लोग इंतहाई खुशहाल और आसूदा ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। स्विट्ज़रलैंड का कौमी खेल स्विस रेसलिंग है। मज़ीद इसके अलावा आइस बॉल, आइस स्केटिंग, फुटबॉल और बास्केटबॉल भी यहाँ बहुत ही शौक से खेली जाने वाली गेम्स हैं। स्विट्ज़रलैंड में दुनिया की सबसे लंबी टनल भी मौजूद है, जैसे गॉथर्ड टनल का नाम दिया जाता है। ये टनल 17 सालों में मुकम्मल की गई, जैसे बहुत ही पेचीदा पहाड़ी सिलसिलों को काट कर बनाया गया है। ये टनल 57 किलोमीटर तवील है। स्विट्ज़रलैंड में लोग अपना ज़ाती असलहा रखने का शौक़ भी रखते हैं। यहाँ की तकरीबन 20 लाख से ज़ायद आबादी के पास गन्स या दीगर असलहे मौजूद हैं, जिन्हें वो शिकार, खेलों और दीगर दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर इसके बावजूद स्विट्ज़रलैंड दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। यहाँ क्राइम की शरह 0.05% है। स्विट्ज़रलैंड में संडे के दिन कोई काम नहीं किया जाता। संडे के दिन सहन की घास काटना, कपड़े बाहर सुखाना, हथौड़ी से कील ठोकना या ऐसा कोई भी काम करना कि जिससे आपके पड़ोसी डिस्टर्ब होते हों, यहाँ एक काबिल जुर्माना जुर्म है। संडे का मतलब यहाँ सिर्फ सुकून और आराम है। हुकूमत चाहती है कि संडे के दिन आप बस अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ मसरूफ़ रहें और इस मुल्क की आबादी में इजाफा करें। स्विट्ज़रलैंड वो मुल्क है कि जहाँ बच्चों के नाम बच्चों की ही मर्ज़ी से रखे जाते हैं। होश संभालने के बाद यहाँ की हुकूमत हर बच्चे को ये हक देती है कि वो चाहे तो अपना नाम तब्दील करके नया नाम रख सकता है, जिसमें इसके वालिदैन की कोई मर्ज़ी शामिल नहीं होती। जबकि कुछ नाम यहाँ बैन हैं, जिन्हें आप स्विट्ज़रलैंड में रहते हुए हरगिज़ नहीं रख सकते, जैसे मर्सिडीज़, पेरिस, जुदा और ल्यूसीफर वगैरह। ये कौम इस कदर ईमानदार है कि अगर आप कोई कीमती चीज़ किसी अवामी मकाम पर छोड़ जाएं तो वो अगले दिन भी आपको उसी जगह पर मिलेगी। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। सुर्ख व सफ़ेद रंगत और सुनहरे बालों वाली ये हसीनाएं बासानी आपके साथ कॉफ़ी पीने या डिनर पर जाने के लिए रजामंद भी हो जाती हैं। ताहम यहाँ आने वाले लोग इनके साथ सिर्फ एक रात का रिश्ता तो बनाते हैं, लेकिन कोई भी इनसे शादी करने या इन्हें अपना जीवन साथी बनाने का ख्वाब हरगिज़ नहीं देखता। वो इसलिए कि स्विस लड़कियों में वफा बिल्कुल नहीं। यहाँ प्यार, इश्क और कमिटमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं। यहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ वक्त गुजारते हैं, मतलूबा फ़वाइद हासिल करते हैं और अपनी अपनी राह लेते हैं। दोस्तों, एक बैनुल अक़वामी सर्वे के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा हमबिस्तरी करते हैं। यहाँ के मर्दो ख़वातीन साल में 123 मरतबा मुख्तलिफ लोगों के साथ जिनसी ताल्लुकात इस्तेवार करते हैं। ये शरह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख की सड़कों पर इंतहाई फहश और गैर इखलाकी परेड का इनेकाद भी होता है, जहां मर्दो ख़वातीन इंतहाई नामुनासिब और उरिया लिबास में नाचते, गाते और मस्तियां करते देखे जाते हैं। बहुत से सयाह सिर्फ इस परेड में शिरकत के लिए भी स्विट्ज़रलैंड का रुख करते हैं। स्विट्ज़रलैंड दुनिया भर में अपने दिलकश नज़ारों, स्विस वॉचेस, चॉकलेट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और सकाफत के लिए मशहूर है। यहाँ इंग्लिश बहुत ही कम बोली जाती है। स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा मुल्क है। सिर्फ 15 से 20 दिनों में ही आप पूरे स्विट्ज़रलैंड का चप्पा चप्पा घूम सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है कि जहां मुसलमानों को अपने मज़हब व सकाफ़त पर अमल पैरा होने की आज़ादी नहीं। यहाँ के मुसलमान अपनी मसाजिद बिल्कुल आम घरों जैसी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ गुंबदों, मीनार और इस किस्म की दूसरी अलामात का इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद है। स्विट्ज़रलैंड में एक ऐसा कानून भी मौजूद है कि जिसके तहत कोई भी खातून बुरके या हिजाब का इस्तेमाल नहीं कर सकती।
यहाँ अपना चेहरा या सर ढांपने वाली खवातीन को $900 तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। स्विट्ज़रलैंड की बाशिंदे इंतहा के मुतासिब हैं, खुसूसन मुस्लिम्स और एशियन लोगों के लिए ये अपने दिल में ख़ास हिकारत रखते हैं। स्विट्ज़रलैंड की सैर के लिए जाने वाले सयाहों को तरह तरह की मनफी कमेंट्स और इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है, जिस पर कई मरतबा मीडिया में बहस व मुबाहिसे भी हो चुके, लेकिन ये कौम सुधरने वाली नहीं। स्विट्ज़रलैंड का सालाना GDP $339.49 बिलियन है, जबकि यहाँ के लोगों की फ़ीकस आमदनी $84,658 है, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ 37 लाख रुपए, जबकि इंडिया के मुताबिक 79,48,000 रुपए बनते हैं। स्विट्ज़रलैंड वो मुल्क है कि जहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात, सियासतदान और दीगर वाइट कॉलर क्रिमिनल्स अपना काला पैसा बैंकों में रखवाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह स्विट्ज़रलैंड की किसी भी अकाउंट होल्डर का राज अफशा ना करने की पॉलिसी है। स्विट्ज़रलैंड पर ये इल्ज़ाम है, जो अब साबित भी हो चुका कि इसने जंग अजीम दोम के दिनों में अपने बैंकों में वो सोना संभाल रखा था कि जिसे जर्मन नाजियों ने मफ्तूहा अक़वाम बिलखुसूस यहूदियों से ज़बरदस्ती छीन कर हासिल किया था। नाजी पार्टी के इन्हिदाम के बाद ये तमाम तर सोना स्विस हुकूमत की मलकियत बना। स्विट्ज़रलैंड को इस मामले में आज भी आलमी सतह पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये मुल्क टैक्स चोरों, करप्ट सियासतदानों और लुटेरों के लिए एक जन्नत कहलाता है। स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा शहर ज़्यूरिख है, जिसका कुल रकबा 87.90 मुरबा किलोमीटर है। ज़्यूरिख शहर की कुल आबादी 4,15,000 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर स्विट्ज़रलैंड की सरजमीन पर पिछले 2000 सालों से आबाद है, जिसकी बुनियाद कदीम रोमी लोगों ने रखी थी। यहाँ अजायब घर, आर्ट गैलरीज और फ़नून लतीफ़ा के बहुत से इदारे भी मौजूद हैं। घड़ियों का सबसे मशहूर और महंगा ब्रांड रोलेक्स भी स्विट्ज़रलैंड से ही ताल्लुक़ रखता है, जबकि यहाँ बनने वाली दीगर घड़ियाँ भी दुनिया में आला मेयार और फैशन की पहचान हैं। हर साल करोड़ों लोग इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती देखने यहाँ आते हैं। टूरिज़्म इंडस्ट्री इस मुल्क की मईशत के इंजन का काम अंजाम देती है। ये एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। यहाँ यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला भी मौजूद है, जो सतह ज़मीन से 4000 मीटर बुलंद है। बेशक यहाँ समंदर मौजूद नहीं, लेकिन इस मुल्क में जगह जगह पर इस कदर खूबसूरत और शफाफ झीलें पाई जाती हैं कि जहां लोग भरपूर इंजॉय करते हैं। ये झीलों के किनारे बैठकर पिकनिक मनाते हैं और तैराकी के मज़े भी लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड के लोग बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद होते हैं। ठंडे मौसम में यहाँ के होटल्स के बाहर गर्म पानी के पूल्स बनाए जाते हैं, जिन्हें ये लोग जकूज़ी कहते हैं। लोग इन पूल्स में खूब नहाते और इंजॉय करते हैं। स्विट्ज़रलैंड की हसीन वादियों में लहराती हुई ट्रेन्स किसी सीनरी का मंजर पेश करती हैं, जो इस मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा है। दुनिया में अगर किसी ने जन्नत देखनी हो तो वो स्विट्ज़रलैंड का रुख ज़रूर करे। स्विट्ज़रलैंड पूरी दुनिया में चॉकलेट सप्लाई करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ बनने वाली चॉकलेट्स इंतहाई महंगी और आला क्वालिटी की होती हैं। खूबसूरत होने के साथ साथ ये एक इंतहाई महंगा मुल्क भी है। यहाँ जाना हर किसी के बस की बात नहीं, खुसूसन मिडिल क्लास तो बस इसे टीवी या तस्वीरों में देखकर ही खुश हो सकती है। स्विस बाशिंदे दुनिया में तवील तरीन उम्र रखने वाले लोगों में शुमार होते हैं। यहाँ लोगों की औसत उम्र 85 साल है। ये दुनिया का पुरअमन तरीन मुल्क है, जिसने पिछले 1500 सालों से किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग नहीं की। यहाँ कई बैनुल अक़वामी इदारों जैसे फीफा, WHO, WTO और अक़वाम मुत्तहिदा की हेड क्वार्टर्स भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया में जन्नत कहलाए जाने वाले मुल्क स्विट्ज़रलैंड की दास्तान, जो यकीनन आपके इल्म में बेशबहा इजाफे का बाइस बनी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें हमारी अनथक मेहनत का सिला मिल सके। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। शुक्रिया।